Good afternoon, good evening, everyone in India and South Asia. This is Vishal from CCSQ College, Quebec, Canada. Today, we are going to cover a lot actually, some excellent updates coming to you straight from CCSQ College, Quebec, Canada. I'm Vishal and I am the India Recruitment Manager for CCSQ. And there are some very exciting stuff that I want to bring to you today. I'll just wait for a couple of seconds for others to join in. And once everyone joins in, I'll give it a quick start. So parents, students, new and existing, I hope you are coping well with the COVID times. You are keeping safe distances. You are keeping in the four walls of your home and staying safe. Let us give it a quick start now. The topics I'm going to cover today are some very exciting updates. I'll take them first from CCSU College. These are related to quarantine that we provide, and I have been requested to have this session done in both English and Hindi. तो मैं आपके सामने सब कुछ बोलूँगा, हिंदी भी बोलूँगा और थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोलूँगा. And I hope you will understand that mix. सबसे पहले कि आजकल जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि सारे स्टूडेंट्स और सारे पेरेंट्स इस वजह से चिंतित हैं कि स्कूल कब, क्लासेस कब स्टार्ट होगी, कॉलेज, सीसीएसक्यू के जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि सीसीएसक्यू का मेन सेशन कब स्टार्ट होगा और अगर स्टार्ट होगा तो क्या होगा, हाउ सेफ विल द स्टूडेंट्स बी. पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड जो है इस बात पे स्पॉइल्ड है. स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं हमारा टाइम कैसे बचे. सो ये सब चीजें जो है, ये चीजें जो है सबको सता रही हैं. Or obviously there is a lot of uncertainty related to vaccines and the cure for COVID, and we are getting some positive news. I would say positive news, not really the the desired news, but positive news on this front. And I'm sure that things will move on fast from here, and the colleges will reopen in a while. So सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि you know that the borders are closed, the Canada borders are closed, and there is a lockdown situation also in India. It's getting extended by 1 or 2 weeks every time. There's some relaxation in some of the occupations. We understand that, but at the same time, there is a huge lockdown situation, and everyone who visits Canada now falls under the Quarantine Act. Quarantine Act का ये मतलब है कि आपको immigration official CDSA will ask you, the students, what is your quarantine plan. There is a mandatory 14 days of self isolation every visitor to Canada has to undergo. As a college we think कि ये continue करेगा even after the lockdown is over. So students से officials ये पूछेंगे कि आपकी quarantine plan क्या है, कहाँ stay करोगे, where will you stay, how will you make sure that you are not in contact with others, you are not spreading or infecting others if you are at all symptomatic or non-symptomatic and still spreading. So there is a requirement of quarantine. और आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी, दिस आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू टुडे, कि क्वारंटीन जो है ये इसके लिए सीसीएसक्यू ने पहले से कुछ सोच रखा है. वी आर गोइंग टू, यू नो, as before, we were providing a 4 months free accommodation and a pickup from the airport to all students of CCSQ. As of today, we are promising the students that ये quarantine act अगर remain करेगा, so we will give free 14 days quarantine to the students. We'll lodge them in a hotel, one person per room, and they will self-isolate. Meals will be provided to them inside the room, and for 14 days. And after 14 days, they will be checked up by the staff appointed by us, the doctors appointed by us, and then we will move them to the apartments. To balance out our before COVID promotion that we always have been carrying on of free 4 months accommodation, we'll give 14 days of free isolation, self-isolation, quarantine, along with 2 months free accommodation instead of 4 months. Now it's up to the student. The student says, okay, मैं quarantine अपने आप कर लूंगा, अपने relatives के पास करूंगा. उस केस में after 14 days आपका checkup जो है वो perform होगा before we move you to the apartment for the safety of other students.
और आपको पता ही है कि हम 4 स्टूडेंट से ज़्यादा आजकल नहीं रख रहे हैं इन आर अपार्टमेंट्स फॉर द नीड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। 2 मीटर का फासला रखने के लिए हम 4 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं रख रहे हैं। और एज यूजुअल जो गर्ल्स हैं उनको अकोमोडेशन कैंपस के 2 किलोमीटर के रेडियस में मिलती है, और जो बॉयज़ हैं उनको 5 किलोमीटर के रेडियस में मिलती है। सो वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ द स्टूडेंट्स, और ये हम इसलिए कर रहे हैं फॉर द पीस ऑफ माइंड ऑफ पेरेंट्स एंड इवन द स्टूडेंट्स। अब ये देखिए कि इसमें मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूँ। जो अपार्टमेंट्स आपको आपको प्रोवाइड होते हैं एनी विच वेज फॉर 2 months नाउ, तो वो आपको सेमी फर्निश प्रोवाइड होते हैं विद गैस, with refrigerator, with a bed and a mattress. This is the minimum, and they are all centrally heated and hugely high quality apartments. तो मैं सिर्फ ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि these questions keep on coming to me time and again for students in the chat, during webinars, during question answer interview sessions and everything. So I thought let us kind of take them along. Now अगर आप अपनी क्वारंटीन खुद इंतजाम कर लेते हैं और सीबीएसई ऑफिशियल्स को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि देखिए मैं अपने रिलेटिव के पास जा रहा हूँ और मैं वहां पे क्वारंटीन करूंगा, तो हम आपको 4 months पिकअप और एयरपोर्ट पिकअप तो दे रहे हैं, और उसके साथ साथ 4 months फ्री अकोमोडेशन भी दे रहे हैं। सो अगर आप आइसोलेशन सेल्फ आइसोलेशन क्वारंटीन प्लान नहीं लेते हैं तो 4 months फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू ब्रिंग टू यू। इजंट इट एक्साइटिंग? एंड इट टेक्स केयर ऑफ अ lot of problems of peace of mind that the parents are facing कि मेरे बच्चे सेफ कैसे रहेंगे, right? And then we are taking care of getting them checked as well. फिर गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, वी ऑलवेज मेक श्योर दैट वो हम अपार्टमेंट्स में जो हमारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनको हम एडवाइस करें और सरप्राइज चेक्स करें कि आर दे फॉलोइंग दोज गाइडलाइंस। और जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, हम 2 वीक्स का सपोर्ट तो किसी भी स्टूडेंट को देते हैं आमतौर पे एवरी सिचुएशन टू सेटल। और उसमें ग्रोसरीज को में हेल्प करना, सर्विस कनाडा के ऑफिस में अगर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है, जैसे उनको सिम कार्ड चाहिए, तो सिम कार्ड जो सोशल इंश्योरेंस नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर कनाडा में लेना पड़ता है सर्विस कनाडा ऑफिस में, वहाँ तक लेके जाते हैं। सिम कार्ड चाहिए, अगर लोकल सिम चाहिए तो वहाँ तक भी हम स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। और अगर उनको बैंक अकाउंट खोलना है तो बैंक तक भी हम स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। 15 days, like 2 weeks, 14 days तक हम पूरा सेटलमेंट सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स का। सो दिस इज अ यूजुअल एक्टिविटी वी डू। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज ये टॉपिक अब चल रहा है तो मैं बता रहा हूँ, बट आई हैव अ लॉट एल्स टू कवर, सो मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा। एक स्टूडेंट अभी से मुझसे पूछ रहे हैं, ये मिस्टर हर्ष नायक है, is it possible I can apply for September intake? Yes, I'm coming to that. I will come to that. September intake is fully open. All our admission team is working from home. Results can be, application is free. Results can be got within 1 to 3 working days. The outcome, whether it is positive, like it is a pre-admission letter or an offer letter, or if you are not eligible, then what is the reason you are not eligible? So this is something, and I think Reena overseas, our trusted partner, has also answered this question. September intake is open, and contact them. So please contact the consultants as and when you feel that there is a query that they can answer. And if they are not able to answer, they always reach back to us and answer you. Now, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमने प्रिपेयर किए हैं, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं हमसे, वो आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो मे इनटेक के स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन पे पहले आते हैं। तो मे इनटेक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो आ नहीं पा रहे, पर जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी स्टडी परमिट अप्रूवल्स उनके होम कंट्री में है, उनको हम ऑनलाइन क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन वीक ऑफ 4th of May, द नेक्स्ट वीक इज कमिंग, वीक ऑफ 4th of May से उनकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। हम उनको डिजिटल आईडी कार्ड्स देंगे, और उसके बाद 25 मई
का जो वीक है उसमें हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो अब उसके लिए भी एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे पास। अब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, क्या एम आई अप टू इट, कैन आई ट्राई एंड देन डिसाइड समथिंग? वेल, you can do that. You can try it for 4 weeks. 19th June is the deadline by which you can ask if you're not happy, or for whatever reason, or you're not able to cope it up, your bandwidth is not coming to be okay, you're feeling that you're missing lectures. Just by 19th of June, you write to the college, and we will make sure we'll defer you to the September intake. Free of cost, no obligations. So this is the extent to which the college is accommodating students and parents right now, and thinking of the peace of mind of students as well as the peace of mind of parents. But मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि the best option for you is be intake online classes. Start it here. अब मैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो आ रहे हैं हमारे पास, मैं उनके जवाब भी बताऊंगा. What things are required to study online? Well, you need a obviously approved study permit, approval in your home country, a computer or a laptop, 2 gigahertz and 2 gig and AMD Intel हो सकता है, and with a 4 GB of RAM, or a smartphone with Android or iOS. We prefer a laptop over desktop, और डेस्कटॉप, और उसमें होना क्या चाहिए, बैंडविड्थ होना चाहिए 5 Mbps, जो कि नॉर्मली इंडिया में अवेलेबल है. आप चेक कैसे कर सकते हैं? बड़ा इजी तरीका है चेक करने का. अगर आप नेटफ्लिक्स वीडियोस उस पर स्ट्रीम कर सकते हैं या यूट्यूब के वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, तो इट्स इनफ फॉर यू. यू कैन डू योर ऑनलाइन क्लासेस ऑन दैट. फिर उसके बाद एक वेब कैमरा आजकल सभी लैपटॉप्स में, फोन्स में, सब में एक कैमरा आता है. वेब कैम इज रिक्वायर्ड एंड माइक्रोफोन इज रिक्वायर्ड. सो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीजें हैं स्टडी ऑनलाइन करने के लिए. While studying online outside Canada, in fact, my study permit compliance of postgraduate work permit. Now, this is a very, very logical question student will ask. The government of Canada, and you can refer to the website, is saying that in this special situation, we will allow the colleges to conduct up to 50% of the courses online, and none of their original eligibility, which they would have had they been in Canada and on site and in person doing a full-time course, will be adversely impacted. None of that facility will be adversely impacted. That means you will continue to gain credits for the course you are doing if you want to go for an advanced course. And number two, you will be still eligible for post-study work permit. ये है कि आप अगर ऑन साइट होते तो आप जॉब कर लेते, पर आप वो भी सोचिए कि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज आप स्टडीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और बाकी की आप कनाडा में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब कर पाएंगे. तो आपका ये जो पीरियड है, इसमें आप गेन कर रहे हैं. आप इसमें अपना प्रेशियस कैरियर टाइम बचा रहे हैं. अपने 4 वॉल्स में सेफ्टी में, अपने घर की सेफ्टी में आप अटेंड कर पा रहे हैं. और बहुत स्ट्रिंजेंट क्लासेस होंगी, बिल्कुल ऑन साइट फुल टाइम की जैसी होंगी जैसे कनाडा में होती है. और उससे अलावा वी आर गोइंग टू प्लेस ऑल द स्टडी मटेरियल, ऑल द प्रेजेंटेशन मटेरियल, सारा स्टडी मटेरियल जो है वो इंटरनेट पे होगा, तो आपको मिलेगा. और फिर कई स्टूडेंट्स शाई होते हैं, they don't want to study, don't want to ask questions. Even if they're studying, they don't understand something, they want to ask questions later on alone to the teachers. तो हम टीचर से इंटरेक्शन सेपरेटली वीकली बेसिस पे उनका करवाएंगे. तो ये सब फैसिलिटीज जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में होंगी, इट विल बी जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू यू. सो इट विल बी जस्ट लाइक अ लाइव सेशन. और सोचिए कि वो इंडिया स्पेसिफिक टाइमिंग्स में देंगे और कनाडा से देंगे हमारे टीचर्स. तो isn't it great? The teachers are going to that extent to give you full-time lectures, almost full-time lectures in Canada, in India specific timings. So that's a great thing they're doing. Which programs are eligible to study up to 50% of the course? हमारे तीनों programs, हमारे तीनों courses, computing support, legal office specialist and medical office specialist, 3 courses हम कराते हैं CCS के. तो तीनों eligible हैं. What are the advantages if I opt for online studies? Advantages क्या? आपके precious time बचेगा, आपके खर्चे बचेंगे, financial obligations कम होंगी, आप अपने post study work permit और credits के still eligible हैं. तो ये advantages हैं. How do I know my internet connection is good enough? Well, I told you. How do you find it that it's good enough? आप देख लीजिए, अगर आप YouTube या कोई और स्ट्रीमिंग साइट से वीडियोस को देख पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं, तो वो ठीक है. नहीं तो प्रोवाइडर से फोन करके पूछ लीजिए कि हमारी बैंडविड्थ कितनी है.
और सेटिस्फैक्शन रेट जो है इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें तो ऑनलाइन कोर्सेज का बहुत पॉपुलर होते हैं और बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी डिप्लोमा डिग्रीज आजकल ऑनलाइन दिए जाते हैं और बहुत इंटरेक्टिव है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। सो इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, तो वो तो खैर आप ही को करना है। सो आई अज्यूम दैट यू कैन डू दैट. What if I lost the connection during the class? All the videos, all the lectures will be stored online. So if you lost a connection, then you will still get the lecture there. अगर आप there is a mandatory 85% attendance, पर अगर आपने due to valid reason जैसे loss of connection and all आपने class miss कर दिया, आप जो देखिए और हमने लिखे we will make up your attendance. Will I have an opportunity to interact with the faculty and other students? Yes, वो बिल्कुल live session जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे होगा, interact कर पाएंगे, chat window होगा और स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर पाएंगे, फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पाएंगे. हाउ मच अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड? 85%. व्हाट इफ आई फेल इन एनी कोर्स? अगर आपकी अटेंडेंस 85% है, अगर आपने मेंटेन की हुई है, तो अगर आप फेल करते हैं, फ्री रीटेक आप कर सकते हैं सब्जेक्ट का जिसमें आप फेल करते हैं. How will I access required courseware such as textbooks? All will be on the internet, so you can download them, you can keep it with them, or you can see it from there. Are there any changes in my program fees? No, there is no change. Whatever you have paid originally as a course fee will be valid. And since you're in your home country, and specifically we have students from South Asia, तो आपको कोई प्रॉब्लम वैसे आएगा नहीं, क्योंकि आपको फिर इंटरनेशनल मेडिकल कवरेज की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने होम कंट्री में आपका मेडिकल का जैसे आप पहले डील करते हैं वैसे ही करिएगा. $426 के आसपास का पर सेमेस्टर कॉस्ट होगा मेडिकल इंश्योरेंस, इंटरनेशनल स्टूडेंट मेडिकल इंश्योरेंस, वो आपको करने की जरूरत नहीं है. बट जो बाकी कॉस्ट हैं हमारे प्रोग्राम की जो हमने लिया है वो वैसे की वैसे रहेंगी. हम ये एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, इसमें हम एडिशनली कुछ चार्ज नहीं करते. I've never studied online before. Will it be challenging? जरूर मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ये सब चाहिए और मैंने पहले भी बता दिया आपको. तो यस, यू विल डेफिनेटली रिक्वायर ऑल दैट. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट सपोर्ट कैन आई गेट फ्रॉम स्टूडेंट सर्विसेज टीम. मैंने अभी बहुत सारी सपोर्ट्स बताया जो स्टूडेंट सर्विसेज टीम करती है. आपको असाइन होगी एक टीम और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनको लिख सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, through the email IDs that we are going to give. So you should be okay. I don't think there'll be any problem. What is self-isolation? Is it mandatory for me? Coming back to self-isolation, it means that you have not to be connecting to others for 14 days. That's the act because of the COVID symptoms. Whether you show the symptoms or not, it's a rule when you enter Canada. And this is a rule, I think, in India also. When any visitors enter, they will have to self-isolate for 14 days. How would I do self-isolation for 14 days? Will CCSQ support me in this? Yes, CCSQ, मैंने अभी बताया कि CCSQ आपको free 14 days quarantine with 2 months free accommodation दे रहा है, plus a pickup from the airport. तो ये सब आपको already मिलेगा, so आपको कोई चिंता करने की, you don't have anything to worry on this. अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आप अपने रिलेटिव के पास सेल्फ क्वारंटाइन करना चाहते हैं, CBSA ऑफिशियल जो है बॉर्डर सिक्योरिटी के ऑफिशियल है, उनको अगर आप सेटिस्फाई कर देंगे तो आपको 4 मंथ्स की अकोमोडेशन जो पहले देते हैं हम वही मिलेगी ऑन फ्री पिकअप फ्रॉम द एयरपोर्ट. तो आपको अगर आपको ये डिसाइड करना है व्हाट यू वांट एंड चेकअप उसके बाद करेंगे बिफोर वी मूव टू यू टू द अपार्टमेंट्स. सो वो हम प्रोसेस जो है वो आपको कन्वे कर देंगे एज एंड व्हेन विद इन 2 weeks 3 weeks हम वेलकम करना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स को एज एंड व्हेन द लॉकडाउन ओपन्स. तो आपको मालूम है अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है जनरली एज पर द क्वारंटाइन एक्ट जो कनाडा में. अगर एक विजिटर आता है, उससे पूछा जाता है आपका आइसोलेशन प्लान, सेल्फ आइसोलेशन प्लान क्या है, वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, दो चीजें होंगी. या तो CBSA का ऑफिशियल बोलेगा आप अपनी कंट्री में वापस जाइए, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा कि आप अपने एक्सपेंस पे होटल में लॉज हो जाइए. दे विल मॉनिटर दैट कि आप होटल में लॉज हो 14 डेज के लिए. तो आप ही का एक्सपेंस लगेगा उस केस में. पर यहाँ पे कॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है. व्हाट डू आई नीड ड्यूरिंग द सेल्फ आइसोलेशन पीरियड? ड्यूरिंग well, details of the self-isolation period will be sent to all the students and our partners. The students will be able to travel to Canada safely.
ये कॉलेज प्रॉमिस करता है। आई एम अ 2-year प्रोग्राम स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस टू माय 4 months फ्री अकोमोडेशन एयरपोर्ट पिकअप। मैंने बताया अगर आप अपना सेल्फ आइसोलेशन प्लान खुद कर सकते हैं मैनेज और सीबीएसई ऑफिशियल को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो 4 months फ्री अकोमोडेशन एंड पिकअप आपको मिलेगा। देयर बी नो चेंज। इवन जैसे ही अगर हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मालूम है, और हमने कहा है कि 4 वीक्स आप फ्री ट्राई करके डेफर भी सीख कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं, सो अगर आप बाई चांस 2 months का फ्री अकोमोडेशन लेते हैं तो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं लेते हैं तो 4 months का ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। द कॉस्ट इज ऑल ऑन अस एज अ कॉलेज। तो आपको कोई इसमें पीस ऑफ माइंड जो है ये पेरेंट्स के पीस ऑफ माइंड के लिए किया है हमने। What happens to my travel plans to Canada if when I'm able to travel? आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल प्लान, अगर जैसे ही लॉकडाउन सिचुएशन खुलेगा, आपका नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। सो हम 3-4 सेमेस्टर होप कर रहे हैं, 3-4 मंथ होप कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं। मे भी 2 महीने लगेगा तो आपको इनवाइट पहले कर लिया जाए। तो हम आपको वेल इन एडवांस बता देंगे, तो आप अपनी टिकट बुक कर लीजिएगा। What happens if I complete 50% of the program and still not able to travel to Canada? देखिए हम जैसे हम 3-4 महीने आगे का सोच रहे हैं, ऐसे ही हम सोचते रहेंगे एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम वी विल बी इन टच। और अगर आपने लेटेस्ट अपडेट्स देखनी है तो कंसल्टेंट हैं आपके रेना ओवरसीज, उनसे कनेक्ट कर लीजिए, या फिर आप मेरा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक साइट है CCSQ कैनेडा, दोनों CCSQ कैनेडा है, वहाँ पे आप अपडेट्स आते हैं, मैं वीडियोस वहाँ पे छोड़ता हूँ, मैं पोस्टर्स, बैनर्स और पोस्ट्स वहाँ पे डालता हूँ। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, और आप वो देखते रहिए, उसको फॉलो कीजिए। और ऑब्वियसली आपके जो काउंसलर्स हैं रेना ओवरसीज पे, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए बाय फोन और बाय इंटरनेट, बाय राइट टू द इनबॉक्स। व्हाट हैपेंस इफ आई डू नॉट वांट टू स्टडी ऑनलाइन? आपको जैसे बताया मैंने, एडवांटेजेस बहुत है। और मेन टेक को आप अपना प्रेशियस करियर टाइम खराब नहीं करना चाहते, 3-4 महीने आगे डेफरल लेंगे सितंबर में, तो आप ट्राई कीजिए। और 19 जून तक अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो डेफरल ले लीजिए सितंबर तक के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास स्टडी परमिट अप्रूवल है होम कंट्री में, तब आप ये सब कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो 30 मई तक वो वेट करें। मेन इनटेक स्टूडेंट्स अपनी डेफर ले लें। अभी मेन इनटेक अभी सितंबर इनटेक ओपन है, तो हम स्टूडेंट कैन विदाउट ऑब्लिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टेक अ डेफर टू द नेक्स्ट टू इनटेक, सितंबर 2020 एंड जनवरी 2021। Do I need to attend online orientation sessions? Yes, week of 4th of May नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल अटेंड कीजिए। और आपको डिजिटल ID कार्ड इशू होंगे। When will I receive more information about the entire program? During the week of 4th of May, जो नेक्स्ट वीक है, आपको मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए। So this was all the exciting updates that I thought I would share with you. I'll now go to my regular agenda. I'll have to move pretty fast. Quick time check. It is 23 minutes today. I was a bit fast, I thought, पर हमने काफी कुछ कवर कर लिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये एक्साइटिंग न्यूज लेके आपके पास, पिछले 4-5 दिन की न्यूज है, बहुत पुरानी न्यूज नहीं है। CCSQ कॉलेज, हम एक ऐसा कॉलेज, अकेला कॉलेज है जो फर्स्ट टाइम कनाडा में फ्री क्वारंटाइन प्लान जो है उसके बारे में सोच के हमने डिसीजन लेके और इंतजाम करके आपके पास आ गए हैं सबसे पहले। सो आप सोचिए कि जो मैनेजमेंट है वो कितना कंसर्न है स्टूडेंट्स की सेफ्टी के बारे में। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स कम टू our usual topics for new students, for prospective students and for their parents. तो सबसे पहले व्हाई समवन विल लाइक टू स्टडी इन कनाडा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। मे इनटेक, सितंबर इनटेक हमारा अभी ओपन है, तो सितंबर इनटेक जून एंड तक ओपन रहेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू रेना कंसल्टेंट्स। यू कैन कनेक्ट देम, नंबर्स चैट में आप भी, मैंने देखा कि चैट में डाला है रेना ओवरसीज ने, तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनके काउंसलर्स को कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन टेक एडमिशन फॉर द सितंबर इनटेक। Applying is free, there is no charges. Offer letter or outcomes are issued between 1 to 3 working days. Our admission teams are working from home. So आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ट्राई करने में क्या है, आपका जो अब वहाँ मैं आऊँगा, पर आपका जो प्रोफाइल है, हमारे सारे कोर्सेज, तीनों कोर्सेज, कंप्यूटिंग सपोर्ट, लीगल ऑफिस स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिस स्पेशलिस्ट, 3 कोर्स कराते हैं हम, दोनों 2 कैंपस हैं हमारे। और मेडिकल ऑफिस स्पेशलिस्ट हम
लॉन्गवील कैंपस है जो मॉन्ट्रियल के पास है, उससे कराते हैं, और मॉन्ट्रियल से 1.5 घंटा दूरी पे मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से शर्ब्रुक कैंपस है, उसमें हम लीगल ऑफिस स्पेशलिस्ट और कंप्यूटिंग सपोर्ट का कोर्स कराते हैं। तो उस पर आएंगे हम। पहले सबसे पहले अगर आप पेशेंस रखिए, और सबसे पहले तो काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि वाई कैनेडा, वाई वुड आई लाइक टू बी इन कैनेडा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम स्पीकिंग टू यू फ्रॉम टोरंटो, and I'm based out of Toronto, and I keep traveling to the college every now and then, as you would imagine. Um, I can tell you that Canada is a wonderful place to live. It's a wonderful place to settle, uh, because it has an excellent work-life balance, number one. Number two, it's very secure. It's one of the most secure countries in the world. I've traveled I've worked around many of the countries throughout my career, and I find this to be a wonderful place in terms of security. उसके अलावा it is very immigration friendly. अगर settle करना चाहते हैं तो I think there is no better place to settle than Canada, and Canada government needs a lot of people who are qualified to settle here. And if you do studies, you are early, then obviously either after studies you can return to your home countries if you want to, or work anywhere else, or it's very possible that you try and settle in Canada. And I will tell you about that. We will cover that. So uh, Canada is a wonderful place to settle, and a very high quality education. Last but not the least, very high quality, affordable education. It's one of the price wise, it is one of the most affordable education in the West, and it is of high quality, very well recognized around the world. तो ये एडवांटेजेस थी कनाडा की। नाउ लेट अस कम टू क्यूबेक, जहाँ पे हमारा कॉलेज है CCSU। क्यूबेक जो है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग इन क्यूबेक? Quebec is the largest probably and the oldest province. State को province बोलते हैं, so province in Canada, as compared to Ontario and Vancouver, which have cities like Ontario has Toronto and Ottawa, and Vancouver is in British Columbia. So as compared to these states and cities, Montreal, which is in Quebec, Montreal and Quebec City, which are in Quebec, are relatively relatively having a very low cost of living. Almost the cost of living is half of the other two provinces I just talked about. Cost of living बहुत अफोर्डेबल है। एक रेंटल अपार्टमेंट जो है वो आपको 1,000 to 1,200 में आपको 2 bedroom 3 bedroom अपार्टमेंट मिल जाता है, जो कि 3,000 से कम नहीं मिलता टोरंटो में या वैंकूवर में। ये तो कॉस्ट हुई। आपने जब डिसीजन लेना तो आप ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है। फिर जो मेडिकल सिस्टम है, मैंने बताया बहुत पुराना है। क्यूबेक तो जो सबसे पुराना प्रोविंस है कनाडा का, 400 साल तक पुराना है, और बाकी प्रोविंसेस 200 साल तक पुराने हैं। देयरफॉर पुराने होने की वजह से बहुत मैच्योर एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम है। तो मेडिकल जो है वो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी कवर करता है, जबकि ओंटारियो का जो प्लान है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, देखिए आपको पता ही होगा कि हेल्थ केयर जो है ये गवर्नमेंट का स्टेट सब्जेक्ट है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सबको जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस है। सो उसमें जो है मेडिसिन कवर होती हैं क्यूबेक के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में, और ओंटारियो के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में नहीं कवर होती। बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि $3,200 का आपका पर विजिट खर्चा आ सकता है मेडिसिन में। कंसल्टेशन तो फ्री है, अगर इमरजेंसी हो जाए तो आई थिंक सब कुछ कवर कर देते हैं। बट चलो इमरजेंसीज के बारे में तो नहीं बात करते अभी, बट नॉर्मली कोई बीमार पड़ जाता है, कोई गिर जाता है, या कुछ छोटा मोटा चोट लग जाता है, तो उस कंडीशंस में आपकी मेडिसिन का खर्चा जो आपको बेयर करना पड़ेगा दायरे में है। व्हीकल इंश्योरेंस है, अगर आप ड्राइविंग प्रेफर करते हैं, अगर आपके पास इंडिया लाइसेंस है, तो इंडिया लाइसेंस पे आप क्यूबेक में 2 साल तक ड्राइविंग कर सकते हैं, जबकि आप उस लाइसेंस के साथ उसकी हिस्ट्री लेके ट्रांसक्रिप्ट लेके आप एक्सचेंज करा सकते हैं, और आपको टेस्ट देना पड़ेगा ओंटारियो में। आप मेरे ख्याल से आप 2-3 महीने चला सकते हैं अपनी गाड़ी उस लाइसेंस पे, और क्यूबेक में 2 साल के लिए चला सकते हैं। जो जो प्रीमियम्स है
वो क्यूबेक में जो मंथली प्रीमियम है कार इंश्योरेंस जो होती है उसका प्रीमियम जो मंथली देना पड़ता है वेस्टर्न कंट्रीज में वो 1/10 है ओंटारियो का। ओंटारियो में $500 to $600 है और $50 to $60 है क्यूबेक में। तो देखिए 1/10 कॉस्ट है। ग्रोसरीज वगैरह थोड़ी सी चीप है क्यूबेक में, बिकॉज क्योंकि मॉन्ट्रियल जो है जो क्यूबेक में है, और मॉन्ट्रियल एक स्टूडेंट डेस्टिनेशन है, और दूसरा मॉन्ट्रियल वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिपिंग पोर्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग नेचुरल रिसोर्सेज का अबंडेंस है यहाँ पे। इनफैक्ट क्यूबेक जो है वो फ्रेश वाटर सप्लाईज का सबसे बड़ा रिजर्वायर है कनाडा में, और कनाडा आपको पता है कि सबसे बड़ा रिजर्वायर है वर्ल्ड का फ्रेश वाटर सप्लाईज का। 55% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर सप्लाईज आर इन कनाडा, 50% ऑफ दो सप्लाईज आर इन क्यूबेक। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है वो बहुत करता है क्यूबेक। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर के अबंडेंस ऑफ वाटर सप्लाईज है, उसकी वजह से शिपिंग का पोर्ट है, उसकी वजह से चीज़ें सस्ती मिलती हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी बहुत है, तो बिजनेसेस बहुत फ्लरिश करते हैं। ऑल 4 सीजन क्लाइमेट है, तो इसके वजह से यू विल नॉट मिस बीइंग इन नॉर्थ इंडिया इफ यू आर इन नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया, बिकॉज आपको 4 सीजन क्लाइमेट मिलेगा। और ऑल्दो कनाडा काफ़ी ठंडा है, और आपको चारों सीजन मिलेंगे, आपको गर्मी सर्दी बरसात सब मिलेंगे। तो अब ये देखिए कि आपको ये सब सुविधाएं आपको जहाँ क्यूबेक में मिल रही हैं, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न है अगर आप वैंकूवर में ही रहना चाहते हैं या आप टोरंटो में ही रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल तो वो सिटीज़ है, पर हाफ द प्राइस में आप स्टे कर रहे हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है कनाडा का। सो सबसे पुराना सिटी, बहुत वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज। I don't like. I'm in Toronto. I don't personally like Toronto in terms of beauty. I think Vancouver is better, and I think Montreal is really, really good, picturesque. आप मॉन्ट्रियल की फोटोज देखिए इंटरनेट पे जाके, आपको पता चलेगा वाइब्रेंट सिटी। आप जैसे एंटर करते हैं आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रहना इज गोइंग टू बी अ प्लेजर। वाइब्रेंसी, लाइफस्टाइल अलग है, डिसिप्लिन अलग है, वर्क लाइफ बैलेंस अलग है, नाइट लाइफ अलग है। रेस्टोरेंट सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स इन कनाडा आर इन मॉन्ट्रियल। सो आपको, और स्टूडेंट सिटी 2017 का सर्वे ने बताया कि ये स्टूडेंट सिटी है। सो ये सब एडवांटेजेस हैं मॉन्ट्रियल में रहने के और क्यूबेक में रहने के। तो मैंने जब बताया आपको पोर्ट्स हैं यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हैं, तो जॉब यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आप जॉब्स बैंक पे जाइए, जॉब्स बैंक कनाडा की साइट पे जाइए, बहुत क्रेडिबल वेबसाइट है। ओपन पोजीशंस देखिए, जितनी पूरे ओंटारियो में ओपन पोजीशंस है एट एनी पॉइंट इन टाइम, मॉन्ट्रियल में उससे ज्यादा है। एक शहर में एक स्टेट से ज्यादा है पूरे ओपन जॉब्स। और फिर क्यूबेक जो है वो फ्रेंच आपको फ्री में सिखाता है, और तीनों मोड्स में फ्री है। अगर आप फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें या ऑनलाइन करें, फ्री है। और गवर्नमेंट अगर फुल टाइम और पार्ट टाइम करें तो आपको पे करती है। इतना प्रमोट करते हैं फ्रेंच को कि गवर्नमेंट आपको फुल टाइम में $820 पर मंथ देती है, और अगर आप पार्ट टाइम सीखते हैं तो अप टू $180 देती है। फुल टाइम में आपको पर वीक $205 देती है, जो 4 वीक से मल्टीप्लाई करें $820 देते हैं। 25 आवर्स ऑफ स्टडी फुल टाइम में आपको चाहिए। बाकी मैं ब्रॉडली आपको बता देता हूँ, हमारे तीनों कोर्सेज जो डिसेमिनेट होते हैं इन पर्सन, तो वो 3 डेज अ वीक होते हैं। तो आपको 4 दिन बचते हैं। या तो आप फ्रेंच सीखिए, पैसे कमाइए, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, पैसे कमाइए, या फिर आप जॉब कीजिए, पार्ट टाइम जॉब कीजिए। सो ये जो है ये यूनिक जो है फीचर्स हैं बीइंग इन क्यूबेक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कहीं पे सेटलमेंट का प्रोविजन फास्टेस्ट और इजीएस्ट है तो वो है क्यूबेक। अगर आप सेटल करना चाहते हैं, वी विल कम टू द लास्ट, बिकॉज मेरा ये टॉपिक होता नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ। आई कांट हेल्प माई सेल्फ बट से कि सेटलिंग इन क्यूबेक इज प्रॉबली द इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट। अगर आपने यहाँ पे सेटल करना है, कनाडा में सेटल करना है, क्यूबेक में सेटल करना है, तो इससे इजी आपको सेटलमेंट ऑप्शन नहीं मिलेंगे। विल कम टू दैट। तो learning French is associated with it, so we will also talk about it a bit more in detail. Coming back to the college, तो हमारे कॉलेज है CCSU, और 1972 से इसका पहला कैंपस जो है वो शुरू हुआ था। 2 कैंपसेस हैं हमारे,
शेरबुक और लॉन्गिल। लॉन्गिल में जैसे मैंने बताया, हम मेडिकल ऑफिस स्पेशलिस्ट कोर्स आज की डेट में डिसेमिनेट करते हैं, 2 years 4 months 4 semesters 2 years and 1800 hours and plus courses inside. तो लॉन्गिल कैंपस है और शेरबुक है। शेरबुक 1.5 घंटा दूर है मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से, और शेरबुक 20 मिनट बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मॉन्ट्रियल डाउनटाउन। तो विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ मॉन्ट्रियल हमारा लॉन्गिल कैंपस है जो मेडिकल ऑफिस स्पेशलिस्ट कोर्स कराता है। लीगल ऑफिस स्पेशलिस्ट और कंप्यूटिंग सपोर्ट का कोर्स शेरबुक में होता है, 1.5 घंटा दूर है, पर हमारा जो कॉलेज है वो शेरबुक के डाउनटाउन में है। तो काफ़ी हसलिंग वसलिंग है। There are a lot of restaurants around, a lot of offices, there's even bus station very nearby. Public transport की कोई problem नहीं है किधर में, so you will get the public transport very easily over there. So this was a little bit about Quebec, and we started speaking about my college. And CCSK is more than 45 years old, excellent infrastructure, great teaching, and till about 2016, this was only open to Canadians, native Canadians. In 2016 and beyond, the college started offering courses for international students, and we now have students from India, Nepal, Vietnam, South Asia, and also from Middle East. Now the students have started taking admission in our college from Middle East. Now this is about the nationalities in the college. Obviously Canadians still remain to be admitted there, so they are still there. And the coaching, the teaching is bilingual, and obviously if you understand English, you are very, very convenienced, because IELTS तो किया ही है आपने, इंग्लिश तो समझते हैं, तो IELTS करना पड़ेगा, है ना। तो इंग्लिश अच्छी है आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्सेज सारे इंग्लिश में डिसेमिनेट होते हैं। तो ये थी ब्रॉडली अबाउट द कॉलेज। अब कॉलेज के 2 कैंपस मैंने बता दिए। व्हाट एल्स? कॉलेज में जो तीनों कोर्सेज हैं, 3 कोर्सेज करते हैं, मेडिकल ऑफिस स्पेशलिस्ट, लीगल ऑफिस स्पेशलिस्ट एंड कंप्यूटिंग सपोर्ट। मेडिकल ऑफिस लॉन्गिल, लीगल ऑफिस एंड कंप्यूटिंग सपोर्ट शेरबुक के कैंपस में। शेरबुक 1.5 घंटा दूर है और लॉन्गिल 20 मिनट की डाउनटाउन से दूरी है, सेंटर, सिटी सेंटर से 20 मिनट का दूरी है, तो इसलिए मॉन्ट्रियल में है। तो अब कोर्सेज की एलिजिबिलिटी पे आते हैं, और कोर्सेज के बारे में तीनों कोर्सेज का मैं कॉमन बताता हूँ। तीनों कोर्सेज DEP DVS टाइप के हैं, डिप्लोमा इन वोकेशनल स्टडीज, और 2 साल 4 सेमेस्टर्स 1800 घंटे और इससे ऊपर 1800 आवर्स एंड अबव है। डिप्लोमाज है, DVS का मतलब है डिप्लोमा इन वोकेशनल स्टडीज, विच मीन स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। सो अगर आप DEP कोर्स करते हैं और साथ में B2 लेवल का फ्रेंच करते हैं, तो आप सीधे ही सेटलमेंट, क्यूबेक में सेटलमेंट के लिए प्रोग्राम है PEQ में अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करें। अगर आपने B2 लेवल फ्रेंच किया है और आपने हमारा डिप्लोमा किया है, तो आप सीधे ही अप्लाई कर सकते हैं और PEQ प्रोग्राम के थ्रू, और आपको 20 दिन में, 20 वर्किंग डेज में आपको क्यूबेक इमिग्रेशन के साइट पे जाइए, 20 वर्किंग डे में CSQ जो क्यूबेक का सेटलमेंट सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता है। इसका मतलब क्यूबेक में तो पक्के हो गए। क्यूबेक में यू हैव ऑलरेडी गॉट सेटलमेंट इन क्यूबेक, और अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास 2 स्टेप्स और हैं। आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस करना है, विच इज़ अ PCC बैकग्राउंड क्लियरेंस, जिसमें थंबप्रिंट लिए जाएंगे। आप 6 महीने से ज़्यादा पिछले 10 साल में जिन कंट्रीज में रहे हैं वहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपका थंबप्रिंट लेके वो चेक करेंगे अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटी, अगर नहीं है तो आप क्लियर कर जाएंगे इजीली। ऐसे ही एक मेडिकल टेस्ट है जो कि ऑथराइज क्लिनिक्स, जो हॉस्पिटल्स हैं, ऑथराइज क्लिनिक्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने साइन किए हैं, वहाँ पे जाके आपने मेडिकल चेकअप करवाना है। अगर आप मेडिकल टेस्ट पास कर जाते हैं तो ये 2 स्टेप्स हैं, और इसको 8 से 12 महीने लगते हैं। आफ्टर यू हैव योर CSQ, उसके साथ आप फेडरल PR का एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे और ये 2 स्टेप्स करेंगे, और उसके बाद आपका PR 90% चांस है कि आपका PR आपको मिल जाएगा कनाडा का। सो आप क्यूबेक में पक्के हो गए, कनाडा का PR मिल गया। स्टूडेंट है 18 साल और 21 साल और 2 महीने करीबन में उसको कनाडा का PR मिल गया। इतना फास्ट है। अब आते हैं सिर्फ आपने कोर्स किया हो, फ्रेंच लर्निंग ऑप्शनल है, फ्रेंच लर्निंग मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने सिर्फ कोर्स किया है तो आप
3 years पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है, अप टू 3 years पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। हमारे जो डिप्लोमा हैं वो रिकॉग्नाइज हैं, हमारे लाइसेंस इंस्टीट्यूशन हैं, तो दोनों कैंपसेस, और आपको अप टू 3 years पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। सो दिस वाज बिग अबाउट जो तीनों में स्टडी है, 3 days अ वीक होती है, 4 दिन आप या तो फ्रेंच सीख सकते हैं, कमेंट फ्री में सिखाती है, आपको पैसे देती है, या फिर आप ना पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अप टू 20 आवर्स एज अ स्टूडेंट आपको अलाउड है जॉब करना, लीगल है वो, अप टू 20 आवर्स पर वीक। तो अब हम कोर्सेज पे आते हैं। सो कोर्सेज के लिए अब एक ब्लैंकेट एलिजिबिलिटी है, हमारे सारे कोर्सेज पोस्ट सेकेंडरी अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी कि 12th के बाद वाले अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है। So, what is varying? What is the eligibility criteria which varies across the courses? सब कोर्सेज की सारी कंडीशंस जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा वो सारी सेम है, बट व्हाट इज डिफरेंट इज कि स्ट्रीम्स, जिस स्ट्रीम में आपने 12th किया है या 10th प्लस रिलेटेड डिप्लोमा या 12th और 12th प्लस रिलेटेड डिप्लोमा, ये आपकी प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर आपने जिस स्ट्रीम में किया, ऑल स्ट्रीम्स के लिए हमारे पास कोर्स, तीनों कोर्स सारी स्ट्रीम्स को कवर करते हैं, आपने जिस स्ट्रीम में किया उसके मुताबिक वो वाला कोर्स आपको ऑफर होता है। सो अगर आपने नॉन मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ +2 किया तो आपको कंप्यूटिंग सपोर्ट का कोर्स मिलेगा। अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स में किया तो आपको लीगल ऑफिस स्पेशलिस्ट मिलेगा कोर्स। और अगर आपने मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपने +2 किया तो आपको मेडिकल ऑफिस स्पेशलिस्ट का कोर्स मिलेगा। अब आर्ट्स के कोर्स के लिए एक एडिशनल मैं बताता हूँ। अब हम कोर सब्जेक्ट्स हमने बता दिए, कोर सब्जेक्ट्स नॉन मेडिकल के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मेडिकल के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आर्ट्स में वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स हैज टू बी, अप टू 3 होते हैं, वन ऑफ देम हैज टू बी एसेंशियली, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ्स, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी। ये जो कोर सब्जेक्ट है उसमें से एक तो ये होना ही चाहिए, बाकी 3 तक हो सकते हैं। और फिर कॉमर्स के अगर है तो भी आप लीगल ऑफिस स्पेशलिस्ट के कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो कॉमर्स के क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स के, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। सो ये 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं। कोर सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स का ही क्राइटेरिया हम चेक करते हैं जब हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। सो आर्ट्स एंड कॉमर्स लीगल ऑफिस स्पेशलिस्ट, कंप्यूटिंग सपोर्ट इज फॉर नॉन मेडिकल, एंड मेडिकल ऑफिस स्पेशलिस्ट इज फॉर मेडिकल स्ट्रीम्स। तो स्ट्रीम्स सिर्फ मेडिकल है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ग्रेजुएट अगर आप हैं तो हमारे कोर्सेज आपके लिए नहीं है, पर अगर आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है आप डिसाइड कर सकते हैं। तब आप जब इमिग्रेशन के लिए वीजा अप्लाई करेंगे, स्टडी परमिट, फर्स्ट या सेकेंड ईयर, अगर आप ग्रेजुएशन के बैचलर्स डिग्री के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, आप उनको बताएंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या था, कनाडा आने का था, इसलिए आपने वो कोर्स को डिसकंटिन्यू करके हमारे डिप्लोमास में एडमिशन लेने की कोशिश की है। सो आपको एक SOP लिख के देना पड़ेगा और इमिग्रेशन अथॉरिटीज, विच इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। सो इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब हम बताते हैं कि व्हाट आर द डिटेल क्राइटेरिया। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया for actually being totally eligible for our courses. First criteria is your English language requirements. English language के IELTS के मेन टेस्ट होते हैं। तो IELTS में 4 मॉड्यूल्स हैं, चारों मॉड्यूल्स में 2 तरह के रिजल्ट आते हैं। आपने अगर एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, 4 मॉड्यूल्स का रिजल्ट आता है, वो 2 तरह का होता है। तो SDS होता है, नॉन SDS होता है। SDS है कि अगर आपके चारों मॉड्यूल्स में 6 6 6 6 हैं और ओवरऑल 6 हैं एटलीस्ट, तो आप SDS प्रोफाइल के हैं, आपका स्कोर SDS है। अगर आप नॉन SDS स्कोर का मतलब है कि एक किसी मॉड्यूल में 5.5 है, बाकी 3 मॉड्यूल्स में 6 है लीस्ट स्कोर, एटलीस्ट स्कोर 5.5 इन वन ऑफ द मॉड्यूल्स, एटलीस्ट 6 एंड ओवरऑल एटलीस्ट 6। सो वो SDS प्रोफाइल है। हम दोनों प्रोफाइल एक्सेप्ट करते हैं एज इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी। अब now this is an additional breaking news of last week, but I'm just going to repeat it again for you. तो हम अब बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट हैं जिनको पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको हमने स्टार्ट कर दिया एक्सेप्ट करना। उनमें है आइल्स, SDS और नॉन SDS तो हम कर ही रहे थे। PTE आइल्स का एक इंडिकेटर टेस्ट आ रहा है ऑनलाइन, वो हम एक्सेप्ट करेंगे। PTE में एकेडमिक मिनिमम स्कोर 53 चाहिए, वो टेस्ट PTE वो एक्सेप्ट करेंगे। TOEFL TOEFL जिसमें मिनिमम स्कोर ऑफ 79 हम एक्सेप्ट करेंगे, पर इसमें एक कंडीशन है, इंटरनेट बेस्ड विद नो सिंगल बैंड स्कोर बिलो 20। 20 से स्कोर
सिंगल बैंड का नहीं होना चाहिए और 79 से कम ओवरऑल स्कोर नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट टेस्ट है जो हम एडिट कर रहे हैं वो है ड्यूओलिंगो। सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि स्टूडेंट्स ड्यूओलिंगो में हम रेंज ऑफ स्कोर्स 105 टू 110 एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ये हम जो है ये सब टेस्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब मैंने सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बताई। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने बोला 4 तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं: इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, गैप रिक्वायरमेंट्स एंड रिपीट और बैकलॉग रिक्वायरमेंट्स। ये 4 तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। सो मैंने अभी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को टच किया है। अब लेट्स कम टू द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैंने पहले इसलिए बताई क्योंकि आपका एसडीएस या नॉन एसडीएस आइल्स जो सबसे कॉमन टेस्ट है उसमें जो स्कोर है अगर वो एसडीएस या नॉन एसडीएस है उस पर डिपेंड आपकी एकेडमिक कोर सब्जेक्ट्स की परसेंटेज उतनी होनी चाहिए। कोर सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए पहले। तो कोर सब्जेक्ट्स की परसेंटेजेस अगर इंडिविजुअल्स अगर आपका एसडीएस स्कोर है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में एसडीएस स्कोर है आपका हायर स्कोर हुआ 6 ओवरऑल 6। सो वो हायर स्कोर है तो आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट थोड़ी लोअर है। इंडिविजुअल कोर सब्जेक्ट में 43% होने चाहिए और एवरेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स में 50% होना चाहिए आपके मार्क्स। और बाकी सब्जेक्ट्स में आप पास होने चाहिए, इंग्लिश वगैरह है उसमें पास होने चाहिए। ऐसे ही अगर आपका नॉन एसडीएस टाइप का इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर है टेस्ट का स्कोर है तो आप जो है 45% इंडिविजुअल कोर सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए और एवरेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स आपका 55% होना चाहिए और बाकी इंग्लिश वगैरह में आप पास होने चाहिए। सो ये थी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, बड़ी क्विकली मैंने बता दिया। आई होप रजिस्टर किया होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट के स्कोर के हिसाब से आपके लिए इंडिविजुअल कोर सब्जेक्ट्स के और एवरेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स की आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आते हैं गैप रिक्वायरमेंट्स पे। व्हाट आर द गैप रिक्वायरमेंट्स? गैप रिक्वायरमेंट्स द वन जब आपने मेजर कोर्स जैसे 12th आपने खत्म किया उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं कॉलेज में तो ये जो पीरियड है इसको गैप बोलते हैं। ये गैप विदाउट प्रूफ या तो प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए पर विदाउट प्रूफ हम अलाउ करते हैं। अगर आपका इंग्लिश लेवल टेस्ट का जो स्कोर है वो एसडीएस है तो आपको 2 साल का विदाउट प्रूफ गैप एक्सेप्टेड है, कॉलेज एक्सेप्ट करता है, आपसे कोई गैप प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं मांगता। पर अगर आपका जो गैप है वो आपका जो स्कोर है वो नॉन एसडीएस है 5.5 वन ऑफ द मॉड्यूल्स में है तो 1 साल का अप टू 1 ईयर का जो गैप है वो कॉलेज एक्सेप्ट करता है विदाउट डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बियॉन्ड अगर गैप है, अगर आपकी स्टडी में गैप अब इससे बियॉन्ड है और आपने काफी देर आपने वेट की है बिफोर यू अप्लाइंग टू कनाडा तो अगर बियॉन्ड 2 years है फॉर एसडीएस एंड बियॉन्ड 1 year है फॉर एसडीएस जो एडिशनल गैप है उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अपने उस कॉलेज को बताना है कि आपने उस दौरान क्या किया, व्हाट हैव यू डन ड्यूरिंग दैट पीरियड। और 3 तरह के गैप्स हो सकते हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वर्क किया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एम्प्लॉयज रेफरेंस लेटर, जॉब रेफरेंस लेटर वो तो चाहिए ही। उसके अलावा वन ऑफ द थ्री दैट आई एम टेलिंग यू व्हिच इज योर पे स्लिप और पे स्टब, bank statement showing the 3 payslips or pay stubs, the latest ones, bank statements showing the credit of salary in the account or the income tax returns। इन तीनों में से कोई एक दिखा दीजिए वो भी चलेगा, 2 दिखा दीजिए वो भी चलेंगे। सो ये है और वर्क एक्सपीरियंस। और कौन सा किस टाइप का गैप हो सकता है? आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, जैसे हमारे जो एलिजिबिलिटी का प्रोफाइल है वो है 10th प्लस रिलेटेड डिप्लोमा, 12th और 12th प्लस रिलेटेड डिप्लोमा। तो अगर आपने डिप्लोमा कर लिए हैं तो वो डिप्लोमा में आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपके मार्कशीट्स हैं, वो भी एक गैप प्रूफ है। अगर आपने अप टू 2 years बैचलर डिग्री की है तब भी जो मार्कशीट्स हैं वो गैप प्रूफ है। तो आजकल हम फाइनल मार्कशीट एक्सेप्ट कर रहे हैं बाय द वे, पर अगर वो ऑनलाइन है तब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं पर हम प्रेडिक्टेड स्कोर्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी, या फिर लास्ट सेमेस्टर की एज अ फाइनल नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग माई स्पेसेस दैट आई टोल्ड यू अबाउट CCSQ Canada, CCSQ Canada, Facebook and Instagram, or reach out to Vena Overseas and they will advise you if you have any doubt regarding this. सो ये थी गैप रिक्वायरमेंट्स जो मैंने बताई। तीसरी गैप रिक्वायरमेंट, अब 2 गैप रिक्वायरमेंट्स मैंने बता दी हैं। एक्चुअली तीसरी एक और गैप रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने कोचिंग ली है, आपने फुल टाइम कोचिंग ली, आपने अगर आइल्स की भी फुल टाइम कोचिंग ली है, पार्ट टाइम नहीं, अगर फुल टाइम कोचिंग ली है और आपने जैसे PMT की फुल टाइम कोचिंग ली है, अगर लेटर हेड पे आपके इंस्टीट्यूट के लेटर हेड पे वो मेंशन है कि आपने फुल टाइम ली है और आपने इस पीरियड में ली है तो उतने पीरियड का हम उसको गैप प्रूफ मानेंगे। So there are 3 gap proofs that I told you about. अब लास्ट रिक्वायरमेंट पे आते हैं जो है रिपीट या बैकलॉग की रिक्वायरमेंट। अगर आपने सपोज 3 साल का डिप्लोमा किया है आफ्टर योर 12th और 10th तो
फॉर 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपका एसडीएस स्कोर था आइल्स का तो आपको 8 रिपीट्स अलाउड हैं उस 3 साल के डिप्लोमा में। अगर आप एसडीएस है आपका स्कोर है, अगर नॉन एसडीएस है तो अप टू 6 आपको बैकलॉग या रिपीट्स अलाउड है। सो ये रिपीट्स जो हैं ये आपके टोटल कोर्स ड्यूरेशन को ना बढ़ाएंगे। आपका लास्ट सेमेस्टर में अगर कोई बैकलॉग रह गया है तो अगर आपको बैक डेटेड मिल जाती है मार्कशीट तो वो फाइन है, पर उससे मार्कशीट जो है अगर आपने सितंबर में ख़त्म किया, सितंबर में आनी थी और आपने जुलाई में किया तो शायद हम अलाउ ना करें। पर आप अप्लाई कर दीजिए रेना ओवरसीज के थ्रू और फिर 1 से 3 दिन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आउटकम मिल जाएगा। सो देयर इज नो हार्म। So this was regarding the requirements to our college. I'll do a quick time check. और मुझे लगता है about 50 minutes we have discussed. और मैं quickly I will jump over to लर्निंग फ्रेंच। थोड़ा सा और डिटेल। लर्निंग फ्रेंच में आपको मालूम है फ्रेंच में 6 लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। और ये जो 6 लेवल हैं इनमें आपको अगर आपने CSQ लेना है, क्यूबेक में सेटलमेंट करना है तो आपको B2 लेवल चाहिए। सो A1 इज बिगिनर्स, C2 इज एडवांस यूनिवर्सिटी। सो B2 लेवल जो है वो एडवांस इंटरमीडिएट लेवल है होता है। सो जो B2 लेवल है वो आप गवर्नमेंट जो है वो मैंने बताया फुल टाइम मोड में 25 आवर्स ऑफ स्टडी पर वीक है। आपके पास 4 दिन तो फ्री हैं, ये 3 दिन हम कोर्सेज करवाते हैं। सो आपको वो जो फ्रेंच लर्निंग है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप जब आपको 1 हफ्ते बाद जब आप पर्सनली जाएंगे अपने इंस्टीट्यूट में CCSQ में तो 1 हफ्ते बाद आपको टाइम टेबल मिल जाएगा आपका। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सपोज आपकी क्लासेस हैं तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को लेके आप ऑनलाइन क्यूबेक इमिग्रेशन की साइट पे लर्निंग फ्रेंच के लिंक्स फॉलो करके ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे। 2 महीने अप्रूवल में लगते हैं। फिर B2 लेवल तक करने के लिए अबाउट 10 months आपको गवर्नमेंट जैसे ही अप्रूवल आएगा आपको पैसा देना शुरू करती है, $820। और मैंने बताया क्यूबेक बहुत चीज़ें हैं, $820 तो सेव ही हो जाएंगे। तो ये जो लर्निंग फ्रेंच है इसमें मैं और चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप जब आपको जो गवर्नमेंट सिखाती है प्रमोट कर रही है फ्रेंच को, तो सबसे बढ़िया बात ये है कि जैसे आइल्स में 4 मॉड्यूल है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आप यहाँ पे आपकी जो वैल्यूएशन होती है, आपकी जो असेसमेंट होती है वो 2 मॉड्यूल्स में होती है सिर्फ। लिसनिंग एंड स्पीकिंग ओरल मॉड्यूल्स में होती है, राइटिंग और रीडिंग की कोई बात नहीं होती, उसकी असेसमेंट नहीं होती। क्लास में जैसे आप जाते हैं तो सारे फ्रेंच बोलना शुरू कर देते हैं। आपको अल्फाबेटिक बुकिश नहीं सिखाया जाता, आपको सिनेरियो बिल्डिंग से रोल प्ले से सिखाया जाता है। जैसे एक कस्टमर है और एक होटल का मैनेजर है, दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशन फ्रेंच में बिल्ड करनी है तो स्टूडेंट्स को बिल्ड करते हैं। 40 मिनट लेके आपस में डिस्कस करते हैं और टीचर से डिस्कस करते हैं, वो बिल्ड करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं क्लास में। आप कभी भूल ही नहीं सकते क्यों, क्योंकि आपको एक नेटिव फ्रेंच टीचर्स पढ़ा रहे हैं, दूसरा आप उसको गेम की तरह, उसको रोल प्ले की तरह, सिनेरियो बिल्डिंग की तरह पढ़ रहे हैं। सो इट इज सो इजी टू लर्न। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6 महीने में B2 लेवल कवर कर लिया। सो इट इज नॉट अ हवा। So don't say कि I can't learn French or it is difficult. It is not at all difficult French. So those are the things which are there, which I thought I will share with you. अब learning French B2 level का क्या फायदा है? मैंने बताया हमारा सिर्फ कोर्स करने से ही, हमारे कैंपस से सिर्फ कोर्स ही करेंगे तो आपको 3 up to 3 years का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया हूँ। कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ कि काफ़ी मैंने स्क्रॉल किया तो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए। मैं कोशिश करूँगा कुछ एक क्वेश्चन आंसर कर दूँ, कुछ एक तो रहना कर ही रहे हैं। तो मैं फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऐड एनीथिंग दैट आई फाइंड ओवर देयर। सो सबसे पहले मैं PR टॉपिक को टच कर रहा हूँ तो इसलिए ध्यान से सुनिए। B2 लेवल फ्रेंच और हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। आपने PEQ प्रोग्राम de la experience du Quebec क्यूबेक एक्सपीरियंस प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेशन डाली, 20 वर्किंग डेज में आप क्यूबेक के PR हो गए, आपको CSQ मिल गया, सर्टिफिकेट de la sélection du Quebec क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल गया। वो क्यूबेक का सेटलमेंट सर्टिफिकेट है, PR क्यूबेक का है। क्यूबेक में तो आप पक्के हो गए। अब दूसरा, अगर 2 स्टेप्स और मैंने बताए, आपने मेडिकल और बैकग्राउंड चेक जो होता है वो दोनों किए और 8 से 12 महीने का पीरियड है। और आपने जैसे CSQ आया आपने फेडरल एप्लीकेशन डाला PR का और आपने ये 2 स्टेप्स करने हैं, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, ये 2 स्टेप्स करने हैं। विद इन 8 to 12 months you will get a 90% sure you will get a Canada PR as of today.
ये सब चीज़ें, मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं इसको कवर करना शुरू कर दिया अब अपने टॉपिक्स में। और बाकी आप क्यूबेक इमिग्रेशन के साइट से क्रेडिबल, सबसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इधर से दे सकते हैं, गूगल कीजिएगा क्यूबेक इमिग्रेशन के साइट में। क्यूबेक में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, इसलिए आप उस एंड पे कभी वरी नहीं कीजिएगा। मैंने आपको बताया मॉन्ट्रियल में ओंटारियो से ज़्यादा jobsbank.ca में चेक करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। Sir, I can go to Canada after diploma in engineering. Yes, you can. It is possible. Please get in touch with Reina Overseas. I think they have responded. ऐसे ही सर, आई वांटेड टू लर्न फिल्म मेकिंग, ये कोर्स हम नहीं कराते भाई, कहीं और ट्राई कीजिए किसी और कॉलेज में, रेना ओवरसीज को कनेक्ट कीजिए किसी और कॉलेज में, हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहे हैं, और मैंने मेरे ख्याल पीआर टॉपिक भी अच्छे से कवर कर दिया। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हम 5 मिनट बिफोर है अपने टाइम के। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो मुझसे तो मैं फिर से देखूंगा और मैं उनको आंसर करने का कोशिश करूंगा। आफ्टर दिस वेबिनार मैं ऑनलाइन जाऊंगा और मैं हो सकता है मैं वहाँ से रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करूँ, या व्हाट्सएप कर दूँ रहना ओवरसीज को, वो रिस्पॉन्ड कर देंगे आपको। अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं अभी तक, अब मैंने देखा अभी सारे क्वेश्चन उन्होंने रिस्पॉन्ड ऑलरेडी कर दिए हैं। अच्छा, तो मैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ को दोबारा बताता हूँ, कॉलेज CCSQ इज प्रोवाइडिंग free 14 days of self-isolation quarantine plan to students along with 2 months of free accommodation and pickup on the college's expenses as and when the lockdown opens. For May intake students who are eligible, who have got study permits in their home countries, for May intake students, we are providing online classes. The students can avail these classes, or after availing, they require 85% attendance. But after availing, if they see that they are not up to it by 19th of June, they can request the college through Reina Overseas, and we can defer them to the next intake. They can get without obligation, without additional pricing, without any cost to them, additional cost to them, except the fees they've already paid. The May intake students can get deferrals to the September or January 2021 intake, September 2020 or January 2021 intake. And I just wanted to repeat again, I wanted to tell that the September intake is now open. It will remain open till June, and those students who have not got their study permits as yet, they can still wait for them till 30th of May, end of May. They're still not there. They can request through Reina Overseas, through their consultant, they can request a deferral to up to next 2 intakes without any obligations. Refunds. Now, if you feel that due to COVID situation you want to change your mind and you are in process of getting a visa, you paid your fees, or you are not, so we will take it as per the refund policy on a case-to-case basis, but we will strongly advise you to wait till you try the September intake or you try the January intake. By the way, the situation is now turning out to be a bit positive, so it is always good to not change your mind at this moment and to wait for the lockdowns to open. May intake, which was due right now, they've already started caring for it by providing you online courses in your home countries, which are really very positive for you. They're saving you precious career time. None of your actual eligibilities are adversely impacted, like you will still remain eligible for post-study work permit after doing it. Whenever you come through Canada, you can do the rest of the course in Canada, and your credit transfers will still remain there. So with that, I think we are almost done, and we pretty much nicely covered most of the things. And I thought that you enjoyed the session today. By the way, I am available on CCSQ Canada, Instagram and Facebook. I provide videos and banners and posts for any updates which are there for the college. And I'm the India Recruitment Manager for CCSQ based out of Toronto. The name is Vishal. On behalf of CCSQ College, I want to thank the students and parents for listening carefully to me and attentively, and I hope you will remain safe. We'll do everything to remain safe in the COVID times. God bless, and many thanks to Reina Overseas
for organizing this today. So I'm signing off right now. And if you have any questions, you can see the sites, or any questions about the programs, you can go to ccscinternational.com, our website, or you can connect to Rain Overseas. They'll provide you the course related details. Thank you. Have a great day ahead and remain safe in COVID times.